میں تو غریب عوام کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو مزدور ہیں کام کرتے ہیں 3 دن کام کرتے ہیں اور 3 دن بیٹھ کے کھائیں گے، وہ جو 3 دن کمائیں گے وہ یہاں پہ ہی بیٹھ کے کھا لیں گے، پھر پیچھے جو گھر کے ہیں وہ خرچات چلنے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سر نہیں بڑھائی، خواہ مخواہ گورنمنٹ نے ایسے ایک فدو بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اس لیے السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سویٹ گپ شپ چینل۔ تو اس وقت موجود ہیں ہم لاہور شہر پر، جہاں پر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا سموگ لاک ڈاؤن کا۔ تو چلتے ہیں پوچھتے لوگوں کی جانب اور ان سے کویسچن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کو ان چھٹیوں کا نقصان یا فائدہ ہوا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ صابر۔ صابر بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ جو سموگ کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگایا گیا 3 دن کا، اس میں لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے؟ اس میں تو غریب عوام کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو مزدور ہیں کام کرتے ہیں 3 دن کام کرتے ہیں اور 3 دن بیٹھ کے کھائیں گے، وہ جو 3 دن کمائیں گے وہ یہاں پہ ہی بیٹھ کے کھا لیں گے، پھر پیچھے جو گھر کے ہیں وہ خرچات چلنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ اس کا ہم اس طرح ہونا چاہیے آنے والے وقت میں؟ اسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں غریب کا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں دیکھنے والوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو غریب پہ لوڈ پڑ رہا ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ جی، بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ آپ کا نام؟ مشتاق۔ مشتاق صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ جو 3 دن کا لاک ڈاؤن لگا سموگ کی وجہ سے، اس میں کیا فائدہ ہوا ہے لوگوں کا؟ ہمیں تو نقصان ہوا ہے، فائدہ کون سا ہوا ہے بھائی؟ نقصان کیسا ہوا ہے؟ نقصان ہی ہوا، کاروبار بند ہو گئے، کام نہیں ہے، آگے کام نہیں ہے، کاروبار ہی بند ہو گئے۔ تو گورنمنٹ نے 3 دن بند کو 4 دن دکان کھلی۔ کہا کہ یہ گھر میں بیٹھے لوگ، عوام گھر میں بیٹھے اور اس سے سموگ ختم ہوگی۔ گھر میں کون بیٹھتا ہے بھائی؟ پھر بھی باہر دنیا پھر رہی ہے، گھر میں کوئی بیٹھتا ہے؟ تو سموگ کم ہوئی ہے؟ ہمیں دیکھی نہیں سموک، تو سموگ کی وجہ سے تو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھی نہیں سموک کیسی ہے بھائی۔ تو اس میں کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں؟ نقصان ہو رہے، کاروبار بند ہے لوگوں کے، غریب لوگ ہیں، وہ کرائے نہیں پورے ہونے دکانوں کے۔ تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو لاسٹ پہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی دینا چاہتے ہیں کہ یہ سموک کا وہ میں دیکھی نہیں ہے اور کاروبار کھلے جائیں، دکانیں نہ بند ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ آپ کا نام؟ میرا نام اشرف زہری ہے۔ سر جی، ہمیں یہ بتائیے کہ سموگ کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، کیا یہ سموگ کم ہوئی ہے لاک ڈاؤن میں؟ ابھی دیکھیں، یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا نا، گورنمنٹ کی پلاننگ پہ مجھے تو ترس آتا ہے۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن آپ ایسی کرونک ڈیزیزز کے دوران لانچ کرتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے عوام کو۔ بالکل۔ لیکن لاک ڈاؤن کا اور سموگ کا ایک دوسرے سے دور دور کا کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا ہے۔ بالکل۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے لوگوں کے جو روزی روٹی کما رہے تھے، غریب یہ ٹھیلے والے، ریڑھی والے، یہ رکشے والے، آٹوز والے، ان کو بہت نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سموگ میں میرے خیال میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ابھی تک وہ آلات انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیے اور نہ ان پہ وہ باقاعدہ عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سموگ ایک ایسی چیز ہے جو کلائمیٹ میں، آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے ماحول میں بہت ساری خرابیاں جب ہوتی ہے نا، یا آپ کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا آپ کے جو پروجیکٹس ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، یا دھواں چھوڑنے والے گاڑیاں ہیں، یا آپ درختوں کو کاٹ رہے ہیں یا فصلوں کو جلا رہے ہیں، تو آپ پورے اپنے انوائرمنٹ کو کنٹامنیٹڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ لاک ڈاؤن تک آ کے جو بات پہنچی ہے۔ میرے نظر میں لاک ڈاؤن سموگ کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرے۔ اپنے انوائرمنٹ کو آپ بدلے، اپنے جو ہے ماحول کو بدلے، اور اپنے جو درختیں ہیں، فصلیں ہیں، ان کو اس طریقے سے کاشت کرے اور اس طریقے سے پھر کٹنگ ہو جائے تاکہ یہ ماحول پہ اثر نہیں پڑے۔ اور ہمارے یہاں ماحول کے حوالے سے کیا ایجوکیشن ہے، کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ چلائے جاتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ بھی وہ جو اس پروڈکٹ کے بارے میں چلائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ سموگ کے حوالے سے لوگوں میں، گراس روٹس میں، کمیونٹیز میں کیا اویئرنیس دے رہے ہیں؟ کوئی اویئرنیس نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کرنا چاہیے،
और आप मास्क लगाएंगे। धुआं जब उठ रहा है ना, धुआं उठ रहा है तो मास्क से क्या आप वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट है, एक इंडिविजुअल प्रोटेक्ट है, लेकिन पूरा सोसाइटी तो आपका कंटामिनेटेड हो गया है। इसके लिए ये है कि आप जो है कोशिश ये करें कि यहाँ पे ऐसा ही आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक माहौल क्रिएट करें कि बारिशें हों, स्मोक बैठ जाए। और बड़े बड़े सोसाइटियाँ बना रहे, उसकी क्या ज़रूरत है? आप बड़े बड़े पार्क्स बनाएं, दरख्त लगाए, ठीक है ना, और लोगों को अवेयरनेस दे दे। ये इंडस्ट्रियल एरिया जो इंडस्ट्रीज़ है आपके, उन जो धुआं छोड़ने वाले इंडस्ट्रीज़ है या वो माहौल को कंटामिनेटेड करने वाले, उन पे फौरी पाबंदी लगा ले। धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों को आप बंद करें, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा और तब जाके जो है आप अपने इस पे स्मोक पे कंट्रोल कर सकते हैं। लॉकडाउन आप 1 साल लगाओ, स्मोक कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, एक और बात है कि सबसे पहले स्कूल बंद किए जाते हैं। इस स्मोक का स्कूल के बच्चों से क्या लिंक है? अभी देखिए, स्मोक का खुद मतलब आप इसको देख लेना, स्मोक से नुकसान तो होता है। बच्चों के लंग्स बहुत वीक होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो वल्नरेबल ग्रुप है, तो उन पे असर होता है। लेकिन अगर आप स्मोक को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या आप 1 साल के लिए स्कूल बंद करेंगे? ये तो हल नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल इसी तरह। तो इसके लिए तो मतलब आप बड़े पैमाने पे एक प्लानिंग करें, तो वो प्लानिंग नजर नहीं आ रही। एक छोटी सी बात करूंगा कि हमारी बदकिस्मती पूरे पाकिस्तान में ये होता है कि वी फेल टू प्लान एंड प्लान टू फेल। या हम सही प्लान करने में फेल हो जाते हैं, या उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूशन में हमारी फेलियर होती है। दोनों सूरत में हम फेल है, तो इसके लिए बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो चाह रही है कि मसनूई बारिशें की जाएं। देखिए, मसनूई बारिशें आप करेंगे, लेकिन वो आपको कितना इफेक्टिव, मतलब कास्ट इफेक्टिव तो नहीं है ना, वो बहुत कास्टली पड़ते हैं। हम जो है, जो चीज़ जहाँ पे आवाम पे खर्च करनी चाहिए या बीमारियों पे करनी चाहिए, इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूंगा ना, कि हमारे पास बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी प्रोडक्ट्स है, और वो सारे प्रोडक्ट्स पे एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और लोग उसको इस्तेमाल करके आपके हॉस्पिटल भर जाते हैं, उनसे डिजीजेस होती है। तो ये जो बारिश होगी, ठीक है, वक्ती तौर पर बारिश होगी, लेकिन आप कुदरत के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते है ना। तो कुदरत के माहौल को मेंटेन करना चाहिए ना, जिस तरीके से कुदरत ने इस माहौल को बनाया, आप उसी तरीके से इसको मेंटेन करें ना। उसी तरह आप इसको मेंटेन करेंगे तो तब आपके लिए जो नेचर आपका साथ देगा, वो आप जुस्तजू करेंगे तो आगे जो है आपके लिए रास्ते खुलेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट उस लाइन पे नहीं जा रही है ना, तो उस लाइन पे जाना पड़ेगा जिसपे इसका बाकायदा हल निकले। आप लास्ट पे गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और उब्बुल वतनी, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे मसले हैं ना, लोग बहुत बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं, लेकिन स्मोक का हल आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे रिसर्च करे, ठीक है ना, इसके जो मेन काजेज है, रूट काजेज है, उस तक पहुंचे और इसकी तदारक के लिए आप क्या प्लानिंग करनी है, वो आपको नेचुरल चीज़ों को वापस रिवर्स करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस बारे में अपने जो है प्लानिंग उसको करना चाहिए कि वो इस पे मजीद रिसर्च करे और इसके लिए जो है वो संजीदगी से काम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? नज़ीर अहमद जी। नज़ीर अहमद। सर, हमें ये बताएं कि स्मोक की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसका कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं, ना किसी ने कोई मास्क लगाया, ना इस पे किसी ने अमल किया है। ये बिल्कुल ज़्यादती है आवाम के साथ। पहले इतनी महंगाई है, इसकी वजह से हम भी स्टैंड बाई बैठे हैं। 12 नंबर रूट तमाम बंद है। उन्होंने कहा कि इस पे साइकिल चलेंगी या पैदल चलेंगी। कोई गरीब गुरबा लोग, डेली विजिट वाले लोग, वो सारा दिन परेशान हो गए। अंदर जाके देखें, इतने पैसेंजर जलील हो रहे हैं, हम इधर बैठे जलील हो रहे हैं, क्योंकि बसें चलेंगी। उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने के लिए बड़े ख्वार और जलील हो रहे हैं। देखो, कोई असर नहीं पड़ा, रोड पे हर चीज़ चल रही है। पाबंदी इसी तरह ना कि इस पे पूरा अमल किया जाए, किसी ने कोई अमल नहीं किया। भट्ठे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, धुआं निकल रहा है जी। इसमें कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। ये खामखा गवर्नमेंट ने ऐसे एक फुद्दू बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसलिए हम भी बैठे हैं। 9 बजे तक हमने बैठना है, उसके बाद हमें छोड़ेंगे भी, आप अभी जा सकते हैं। उससे पहले हमने इधर बैठना, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी दिहाड़ी चालू है, जिस टाइम भी रूट चलेगा, मगर अभी रूट नहीं चलेगा। 12 नंबर रूट चलता नासिर बाग से आरे बाजार की तरफ। हम 1 बजे के इधर बैठे हैं। इसका कोई ख़ास असर नहीं है। एवं खामखा बहुत महंगाई में आके इसे गवर्नमेंट ने परेशान किया है।
वजीर आज़म या वजीर आला साहब ने जी माल रोड बंद रहेगा, मार्केटें बंद रहेगी। एक मजदूर वो सारी डेली वीजर पे काम करता है, उसने 1000-1500 दिहाड़ी कमानी है, उसकी तो आत्मा रुल गई ना आज, उसके बच्चे भूखे रह गए आज। इसका क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तब होता है जो इसके पे कोई अमल करे। इस पे किसी ने अमल किया। तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट? हम गवर्नमेंट को मैसेज ये देना चाहते हैं, ये फजूल है, ये लॉकडाउन किसी चीज़ का कोई स्मोक नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं हद तक मैंने खुद तक मास्क नहीं लगाया। स्मोक वो होती है जो नुकसान दे, कोई सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स घूम रहे हैं, इस पे अमल भी नहीं कर रहे। जब मास्क लगाएं या पाबंदी करें, गवर्नमेंट के लिए मैसेज ये है कि इस पर पाबंदी ख़त्म करें, मार्केटें खोलें। रोज़ी रोटी इसी वजह से जराइम बढ़ते हैं। जब इंसान भूखा प्यासा रहेगा, रात को रोड पे निकलेगा, वो जराइम करेगा क्योंकि उसने अपना घर चलाना है। इसी वजह से जराइम बढ़ते हैं और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। कोई फ़ायदा ही नहीं गवर्नमेंट को। या तो कोई फ़ायदा हो ना, इसका कोई फ़ायदा हो तो फिर बात है। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो लॉकडाउन लगाए बैठी है, इसकी वजह से काफ़ी जराइम पेशा जो है वो इजाफा हो रहा है, उसमें लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। लिहाजा आप गवर्नमेंट से अपील है कि जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए। चलते हैं किसी और की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये आपका नाम? असद अब्बास। असद अब्बास। भाईजान हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट ने 3 दिन का स्मोक लॉकडाउन लगाया हुआ है स्मोक की वजह से, क्या ये ठीक है? लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इनका। सारी दुकानें खुली हैं, मार्केटें खुली हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, समझ आइए। जी जी। इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या हो रहा है? खजल कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं लोग। पुलिस वाले खजल करते हैं, अंदर कर लो सामान, बाहर कर लो। बाहर जब करते हैं हम तो कहते हैं अंदर कर लो। ये सारी जलालत ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सारी दुकानें खुली हैं, बताएं कहाँ स्मोक है? कोई कुछ नहीं है। ये सारी सरासर जो है ना जलालत है जी। लोग आ जा रहे हैं, कोई मास्क का ख्याल नहीं कर रहा। कोई मास्क वगैरह किसी ने पहना हुआ है? देखें जरा, इतनी आवाम घूम रही है यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है। तो आप लास्ट पे गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई गवर्नमेंट का नहीं है, बस हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अपना कमाओ अपना खाओ बस। ये सारे चोर हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने देख लिया लोगों का रद्द-ए-अमल इस बात में, स्मोक के हवाले से क्या इनके इंकशाफ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।